Good morning, students. Welcome you all for online learning session. Today we are going to start lesson number 5, fractions, standard 5th. What is fraction? Which is having numerator and denominator, that is called fraction. Fraction is of like 1 upon 2, 2 upon 4, 3 upon 6, like in this form. And there is one more thing, is that what? Equivalent fraction. What is equivalent fraction? It means that the value of all the fractions is same, is called equivalent fraction. For example, see here 1 upon 2 it is written, and is equals to 2 upon 4. When we divide this 2 upon 4, we will get 1 upon 2. Here 3 upon 6, when we divide this 3 upon 6, so we will get 1 upon 2. So this is called equivalent fraction, means denominator is same and numerator is also will be same. So that is called equivalent fraction. So what these 2 points we have to remember. When the numerator and denominator of a fractions are multiplied by the same non-zero number, we get a fraction that is equivalent to the given fraction. It means what? अगर हम लोगों को equivalent fraction बनाना है, so what we will do? We will multiply the numerator and denominator by the same number. If we multiply a numerator by 5, so we will multiply in the denominator also by 5. Okay. So we get a fraction that is equivalent to the given fraction. Same thing in the division also. If the numerator and denominator have a common divisor, then the fraction we get and dividing them by that divisor is equivalent to that गिवन फ्रैक्शन. जैसे हम लोग मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम कर रहे हैं, वैसे ही हम जो है वो डिवीज़न भी जो है वो सेम करेंगे. अगर हम कोई नंबर को डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करते हैं तो उसके न्यूमरेटर को भी हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे. इफ़ वी डिवाइडेड बाय 3, सो न्यूमरेटर इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 3. हैव यू अंडरस्टूड? सो दीज आर व्हाट? फॉर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. So let's move on to the problem set 17. Write the proper number in the box. First one is what? 1 upon 2 is equals to, numerator is not given and denominator is given, and we have to make the what? Numerator by looking this denominator. See here denominator is given 20. हम लोग क्या करेंगे? ये 20 जो दिया हुआ है तो हम लोग इसके डिनोमिनेटर से इसका न्यूमरेटर मालूम करेंगे. See, I have written on my book 2. 2 multiply by which number? Then we get what? 20. 2 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमको 20 मिलता है. So 2 10s are 20. It is multiplied by 10. If denominator multiply by 10, so we have to multiply its numerator also by 10. So 10 1s are 10. Have we got the answer? See here 3 upon 4. Numerator is given. One hint is always given for you. एक हिंट जो है वो आपको हमेशा दी हुई होगी. So 3 multiply by which number? This is the question and this is the answer. तो 3 multiply by which number? We get what? 15. So 3 5s are 15. न्यूमरेटर में 5 से मल्टीप्लाई किया है तो हम लोग डिनोमिनेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इसका डिनोमिनेटर मिल जाएगा what? 4 5s are 20. These are called equivalent fraction. 9 upon 11. 9 multiply by which number? Then we will get 18. 9 2s are 18. In denominator also multiply by 11. 11 2s are 22. Have you understood? Now see fourth one. 10 upon 40 is equals to. Now see here answer is given and question we have to make, or you can say हमको क्या देखना है कि इसमें से जो है वो छोटा नंबर ये है. अब 40 को किससे डिवाइड किया है तो 8 बना है, या 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 बनेगा. आप ऐसे दोनों में से कोई भी चीज़ देख सकते हो. या तो 40 को ऐसे नंबर से डिवाइड करो जो आपको आंसर 8 मिले, या तो 8 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जो आपको आंसर 40 मिले. सपोज मैं यहाँ पे 40 को डिवाइड करेंगे हम लोग किससे? 5 से, राइट. सो वी विल गेट व्हाट? 5 8s are 40. अगर आप 5 को डिवाइड करो 40 को डिवाइड बाय 5 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 8. जब आप नीचे 5 से डिवाइड कर रहे हो तो आपके इसके न्यूमरेटर में भी किससे डिवाइड करना है? 5 से. सो 5 के टेबल में 10 कब आता है? 5 2s are 10. एक मैं आपको हिंट दूंगी इसके लिए कि अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हो.
इधर क्या है 8। अब दोनों में से देखना है ऊपर या नीचे, जो भी रहेगा, दो आमने सामने नंबर दिए रहेंगे तो उसमें देखना है आपको छोटा नंबर कौन सा है। छोटा नंबर कौन सा है? 8 है। 8 को किससे मल्टीप्लाई किया तो 40 आया। 8 मल्टीप्लाई बाय 5, 8 5 ज़ा 40। अब हमको एक नंबर ऊपर के लिए मिल गया कि क्या है वो 5। नीचे मल्टीप्लाई बाय 5 किया है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे। 5 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है ऑलरेडी 10। तो 5 को किससे किया है? 2 से किया है। 5 2 ज़ा 10, 2/8 2/8। या तो आप डिवाइड करके फाइंड आउट करो या तो आप मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करो। हैव यू अंडरस्टूड? So rest of the questions you have to do it by your own. See this one 14/26 and here is what 13. 13 को किससे मल्टीप्लाई किया या 26 को किससे डिवाइड किया है तो 13 आया है। तो 13 2 ज़ा 26। तो यहाँ पे आप डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हो। जब यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 लिख कर दोगे तो 14 भी डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो किससे जाएगा? 2 7 ज़ा, दैट मीन्स 7/13। So rest of the questions you have to do it. Now question number 2. Find an equivalent fraction with denominator 18 for each of the following fractions. हमको क्या बोल रहा है? हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है वो बनाना है डिनोमिनेटर 18 करके। तो हमने क्या किया, पहले डिनोमिनेटर में पहले ही हर एक नंबर के सामने, हर एक फ्रैक्शन के सामने आप 18 18 करके करते जाओ। तो यहाँ पे क्या हो गया 2 और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 18 है, मतलब हम लोग को 18 डिनोमिनेटर बनाना है और उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढना है। तो 2 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करें तो हम लोग का 18 आया। 2 को 9 से मल्टीप्लाई किए, 2 9 ज़ा 18। जब नीचे में 9 से मल्टीप्लाई किए तो उसके न्यूमरेटर में भी 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 9 1 ज़ा 9। 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या निकला हमारा? 9/18। उसके बाद सेकेंड वन देखो 2/3, ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद सेकेंड 2/3, 2/3 डिनोमिनेटर 18 बोला है। देखो यहाँ पर 18 बोला है, फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 18 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। हर किसी के लिए हमको डिनोमिनेटर 18 लेना ही है। सो आप जब जब सॉल्व करो हर किसी के डिनोमिनेटर में 18 लो। नाउ 3 6 ज़ा 18, नीचे मल्टीप्लाई 6 से किया तो ऊपर भी 6 से होगा। 6 2 ज़ा 12, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आ गया? 12/18। हैव यू अंडरस्टूड? सो ऐसे ही आपको 4/6, 2/9, 7/9, 5/3 के भी सबके ऐसे ही डिनोमिनेटर पहले 18 करके आपको फाइंड आउट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 5। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना बनाने बोल रहा है? 5। सी 6/15 इज इक्वल्स टू व्हाट? डिनोमिनेटर विल बी 5। डिनोमिनेटर हमको 5 बनाने बोल रहे हैं, तो कैसे करोगे? अब जब ऐसा दिया रहेगा नंबर तो मैंने आपको बताया या तो इसको मल्टीप्लाई करो या तो इसको डिवाइड करो। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा बोलो? 5 के टेबल में 15 कब आता है? 5 3 ज़ा 15। या तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करो या तो इसको 3 से डिवाइड करो, कोई भी एक चीज़ करो। समझ में आ रहा है? सो 5 3 ज़ा 15, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। 3 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया। 3 2 ज़ा 6। और अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो नीचे डिवाइड बाय 3 कर रहे हो तो ऊपर भी डिवाइड बाय 3 कर दो। सो डिवाइड बाय 3, 3 2 ज़ा 6। सो 6/15 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा? 2/5। और जो कि डिनोमिनेटर में 5 आ भी गया है। यहाँ पे हमको बोला था विद डिनोमिनेटर 5 ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। उसके बाद सेकेंड वन भी देख लो, 10/25 इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर पहले ही लिख दो 5। सो हर किसी के लिए आपको डिनोमिनेटर 5 बनाना है। सो 5 5 ज़ा 25, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? डिवाइड बाय 5 कर रहे हैं, राइट? जब नीचे डिवाइड बाय 5 करेंगे तो ऊपर भी डिवाइड बाय 5 करेंगे। 5 के टेबल में 10 कब आता है? 5 2 ज़ा 10। तो क्या आ गया? 10/25 इज इक्वल्स टू 2/5। दिस इज व्हाट? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू हैव टू डू इट। नाउ सी fourth one, from the following fractions given below, pair of the equivalent fraction। यहाँ पे जो है वो कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं और इसका आपको पैर बनाना है, इक्विवेलेंट पैर बनाना है। जैसे कि 1 2 3 4, here 4 1 2 3 4, here 4 pairs are given। So how we will make?
सो आपको यहाँ पे जो है वो इसी का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढना है। जैसे 2/3 है तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा नंबर जो ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई होगा, समझ में आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे क्या है 14 है, यहाँ पे 18 है। अगर हम लोग 2 के टेबल में 14 का बताए 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14 ले रहे हैं तो 3 को भी 7 से ही करेंगे, 3 7 ज़ा 21। तो ये तो उसका मैच नहीं हो रहा है क्योंकि 2 7 ज़ा 14, 3 7 ज़ा 21, 14/21 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 14/18 है। और अगर हम लोग 3 6 ज़ा 18 लेते हैं तो ऊपर भी 6 से ही लेना चाहिए था, 2 6 ज़ा 12। तो ये तो उसका पैर होगा ही नहीं। हम लोग क्या देखेंगे अभी, 2 के टेबल में 15 ये तो नहीं आता है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं 2 के टेबल में 18 कब आता है, 2 9 ज़ा 18। जब 2 को 9 से मल्टीप्लाई किए तो 3 को भी 9 से करो, 3 9 ज़ा 27। सो 18/27 कहाँ पर है, यहाँ पर है। दैट मीन्स 2/3 का पैर क्या होगा, 18/27। ऐसे आपको लिखना है, 2/3 इज इक्वल्स टू 18/27। और चाहिए तो आप ऐसे ब्रैकेट में लिख दो, बिकॉज 2 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल्स टू वॉट, 18/27। नेक्स्ट 5/7। 5 2 ज़ा 10। जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 7 को भी 2 से करो, 7 2 ज़ा 14। इट मीन्स 10/14 इज द पैर ऑफ 5/7। नेक्स्ट 5/11। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 3 ज़ा 15, 11 3 ज़ा 33। सो what is the pair of 5/11? 15/33. 7/9. 7/9 is the pair of what? See, 7 2 ज़ा 14, 9 2 ज़ा 18. So 7/9 is the pair of 14/18. You have to write like in this form. Question number 5. Find 2 equivalent fractions for each of the following fractions. हमको क्या करना है, 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढना है हर किसी के, इसके भी, इसके भी, इसके भी। तो फर्स्ट वी टेक व्हाट, 7/9। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढने के लिए हमने क्या किया है, हमने क्या सीखा है, मल्टीप्लाई सेम नंबर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑल्सो। इफ आई मल्टीप्लाई बाय 2, सो इन न्यूमरेटर ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय 2। 7 2 ज़ा 14, 9 2 ज़ा 18। ये एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। अब दूसरा वाला भी हम लोग मालूम करेंगे। कोई भी नंबर ले सकते हो आप, यू कैन टेक एनी नंबर। जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिया, आप 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, कोई भी ले लो, लेकिन ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 2 से हो गया, अब मैं ले रही हूँ 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मल्टीप्लाई बाय 3। 7 3 ज़ा 21, 9 3 ज़ा 27। 7/9 के कौन कौन से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुए, 7/9 इज इक्वल्स टू 14/18 इज इक्वल्स टू 21/27। हो गए 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब उसके बाद क्या है, 4/5। ये था नंबर 1। नाउ नंबर 2, 4/5। 4/5 का भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लोग ऐसे ही करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिया, आप फिर से 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, यू कैन टेक एनी नंबर। सो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 4 से कर लेती हूँ। कोई भी नंबर आप ले सकते हो। सो 4 4 ज़ा 16, 5 4 ज़ा 20। ये एक हो गया। अब उसके बाद में मैं दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए कौन सा नंबर लूँगी, कोई भी नंबर ले सकते हो आप। लाइक इफ़ आई टेक 6, बट दोनों जगह सेम लेना है। 4 6 ज़ा 24, 5 6 ज़ा 30। 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए 4/5 के। तो आप लिखोगे 4/5 इज इक्वल्स टू 16/20 इज इक्वल्स टू 24/30। जैसे मैंने यहाँ पे 4 और 6 लिया, आप चाहिए तो वापस से 2 और 3 ले सकते हो। कंपलसरी नहीं है कि यही नंबर्स लेना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है कि ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए, बस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में ये इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? एंड 3/11 यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ, क्योंकि एक क्वेश्चन तो मुझे आपको प्रैक्टिस के लिए देना है, तो आपको ये अपने खुद से करना है। नाउ वी विल learn about the what like fractions and unlike fractions. What is like fraction?
Fractions like what? Such as 1/7, 4/7, 6/7, whose denominator are equal are called like fractions. जो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते, इक्वल होते हैं, उसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन. जैसे कि यहाँ पे 1/7, 4/7, 6/7, इन तीनों के डिनोमिनेटर क्या है? 7 ही है, इक्वल ही है, तो इसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन. और अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो गए तो वो क्या होगा? अनलाइक फ्रैक्शन होगा. दीज आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस. रिमेंबर इट. लाइक फ्रैक्शन क्या है? डिनोमिनेटर आर सेम, एंड अनलाइक फ्रैक्शंस विच हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस. और एक चीज़ हम यहाँ पे सीखेंगे, कन्वर्टिंग अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस. अगर ऐसे डिफरेंट डिनोमिनेटर्स रहेंगे तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करोगे लाइक फ्रैक्शन में? सी फॉर एग्जाम्पल 5/6 and 7/9. These denominator are what? Different, 6 and 9. So what we will do? First we will make the denominator equal. कैसे करेंगे डिनोमिनेटर इक्वल? तो पहले 6 के मल्टीपल्स निकाल दो. 6 के मल्टीपल्स क्या है? 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30. बस इतना ही जाओ. उसके बाद 9 के भी मल्टीपल्स निकाल दो. 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45. ओके, दैट्स इट. नाउ विच इज़ द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल? सबसे छोटा जो है वो कॉमन मल्टीपल इसमें सबसे पहले कौन सा मिल रहा है हमको? 18, राइट? 18 मिल रहा है. सो हम इसको क्या करेंगे? डिनोमिनेटर 18 बनाएंगे. ऐसे आपको बनाना है डिनोमिनेटर इक्वल. सो इसको क्या बनाओगे? डिनोमिनेटर 18 बनाओगे. सो 5/6 और यहाँ है 7/9. इसका डिनोमिनेटर 18 कैसे बनाओगे? किससे मल्टीप्लाई करोगे 6 को? 6 मल्टीप्लाई बाय 3. डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करो. इसको 18 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से. इफ़ यू मल्टीप्लाई इन डिनोमिनेटर बाय 2, इट्स न्यूमरेटर इज ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय 2. नाउ 5 3 ज़ा 15, 6 3 ज़ा 18, 9 2 ज़ा what? Sorry, 7. These what? 7. 7 2 ज़ा 14, 9 2 ज़ा 18. Denominator same. It means this we have converted into like fractions. Have you understood? अनलाइक फ्रैक्शंस को आपको जब लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने बोलेगा तो आपको ये स्टेप फॉलो करना है. सी हियर प्रॉब्लम सेट 18. कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शंस. वी हैव टू कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन. क्योंकि ये अनलाइक फ्रैक्शन है, इसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे. डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैंने आपको क्या बोली थी कि आप पहले क्या करोगे? 4 के मल्टीपल्स लिख दोगे. वॉट? 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, वट एवर. देन 8 के भी मल्टीपल्स लिख दोगे. आप लिखना है यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड मल्टीपल्स ऑफ 8. 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, लाइक दिस. नाउ सी विच इज़ द कॉमन फैक्टर? कॉमन मल्टीपल 8. इट मीन्स हम लोग डिनोमिनेटर को क्या बनाएंगे? 8 बनाएंगे. यहाँ पे ऑलरेडी 8 बना हुआ है, तो किसको हमको चेंज करना है? 3/4 को. सो फर्स्ट वी राइट दिस नंबर 3/4 एंड हियर व्हाट? 5/8. नाउ वी विल मेक द डिनोमिनेटर एज 8. सो 4 मल्टीप्लाई बाय विच नंबर? देन वी विल मेक 8. 4 2 ज़ा 8. इफ़ वी मल्टीप्लाई इन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय 2. सो 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8. 5 and 8 विल बी एज इट इज़. समझ में आ रहा है? तो ये डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो ये क्या हो गया? लाइक फ्रैक्शन बन गया. इतना ही आपको करना है. दैट्स इट. सी द नेक्स्ट वन. सेकेंड वन, 3/5, 3/7. सी denominators are different, so what we will do? We will write the what? Multiples of 5 and multiples of 7. मल्टीपल्स ऑफ 5 क्या हो जाएगा? 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30 एंड 5 7 ज़ा 30. सॉरी, 5 7 ज़ा 35. एंड यर 7 के मल्टीपल्स क्या हो गए? 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35,
7 6 जा 42 and so on. So which is the common? 35 and here is also 35. उसके अलावा कोई कॉमन दिख रहा है यहाँ पे? नहीं. That means we have to make the denominator as 35. Now let us make 35 the denominator of both fraction. So हम लोग क्या करेंगे? 3/5 and here we will write 3/7. 5 को 35 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 7 जा 35. 7 को 35 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से. डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी 5 से करो. डिनोमिनेटर में 7 से किया है तो यहाँ पे न्यूमरेटर में भी 7 से करो. सो 3 7 जा 21, 5 7 जा 35, 3 5 जा 15, 7 5 जा 35. वी हैव कन्वर्टेड इनटू लाइक फ्रैक्शन. हमने कन्वर्ट कर दिया ना लाइक फ्रैक्शन में. दैट्स इट. यू हैव टू डू इट लाइक दिस. सो नाउ आई एम going to do 8th one, this one, because I have done this one and these one you have to do it by yourself. Now I am going to do this one, 8th one. What? 1/6 and here is what? 4/9. What we will do? Okay, मैं ये जो नंबर है मैं यहीं पे आपको लिख के दिखाती हूँ. पहले हम लोग क्या करेंगे? मल्टीपल्स ऑफ 6 लिखेंगे. मल्टीपल्स ऑफ 6 and multiples of 9. Multiples of 6 are what? 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6s are 36, 6 7s are 42 and so on. आप चाहिए तो पूरा टेबल लिखो या इतना भी लिखोगे तो चलेगा जब तक आपको कॉमन नहीं मिलता. 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 9 5s are 45 and so on. Now see which is the common? 18 is the common, right? Here 36 is also common but don't take this one because हमको जो सबसे पहला मिलेगा छोटा वही हमको कॉमन मल्टीपल लेना है. 18 is the common multiple of both this. So what we will do? Again we will write the fraction and what? We will make the denominator 18 of both fraction. So इसको 18 बनाने के लिए हमको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? 6 3 जा 18. Denominator multiply by 3. Its numerator is also multiply by 3. So what we will multiply by 9? By 2. 2 9s are 18. Its numerator is also multiply by 2. 3 1s are 3, 6 3s are 18, 4 2s are 8, 9 2s are 18. हो गया like fraction में. Only this much you have to do. I hope you all have understood. जब भी आप डिनोमिनेटर इक्वल करने जाओ या तो उसके मल्टीपल्स निकालो और अगर आपको डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो. अगर आपको पता है कि इसको डिनोमिनेटर क्या बनाना है, जैसे कि ये 5 है ये 10 है, अगर आपको पता है कि हम लोग 5 को 10 बना सकते हैं तो डायरेक्ट आप 5 को मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर सकते हो. और अगर नहीं समझ में आता है तो ये बेस्ट वे है कि आप मल्टीपल्स मतलब क्या उसके टेबल लिख लो, डिनोमिनेटर के कुछ टेबल लिख लो, उसके बाद कॉमन देख लो और उसको डिनोमिनेटर वैसे बना दो इक्वल. सो हैव यू अंडरस्टूड? So practice set 17 and 18 we have completed in this video. I hope you all have understood and practice it the remaining questions. Thank you so much students.